जी बेटा आ रही है नजर? चल बाकी सबको भी आ रही है ना नजर? कोई और भी बता दो भी सबको नजर आ रही है? चलो बाकी सब तो ऐसे सो जाते चले. Now, in the previous, we have started with the development of pharyngeal arches. Then we have go to the development of the tongue. Then we have discussed about the development of thyroid, and then continuing with the neck, head and neck region. Now we are going to discuss about the development of face, nose, and palate. So with this, the development, when we will discuss this, inshallah, we will be completed with the discussion of the development of the head and neck region. Baki रह जाएगा eye and ear, so that can be discussed separately, वो separate discuss हो जाएगा. So आज हमने ना face के साथ discuss करना है. तो face, discussion of the face. So this slide I have included لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ because I have selected this verse of the Quran because the face is the extreme appreciable part of the body. So उसको आप देखेंगे कि चेहरों को अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत और कितने तरीके से बनाया और कितनी खूबसूरत बनाया. लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, perfect बनाया. So at 4 to 5 weeks of embryo, this is a lateral view showing pharyngeal arches. Along with that, this is a region of the face where you can appreciate that there is starting the development of the lens, that is eye, and here near the center, the starting of the development of the nose. So here we see when we start discussion about the development of the face, we should keep in mind that above in the head region, in the cranium, the brain is developing and it is enlarging. And below the head, below your forehead is the face region. So here in this region, the thing to understand that there are 5 processes which are is the mouth cavity, the space between the lips where the mouth opens starts oral cavity, then it is connected over oral cavity with the pharynx. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंडोडर्मल वो है ऑफ द फोरगट जिसमें के डेवलप होना फिर फेरिंग्स फिर उसके बाद इसोफेगस और नीचे जाएगा ये सारा. ये फिर जब हम जीआईटी डिस्कस करेंगे या हम लेरिंग्स की डिस्कशन करेंगे तो इसोफेगस के लिए तो उसमें ये आएगा. तो यहाँ पे ये होता है कि एक्टोडर्म आउटसाइड इनसाइड एंडोडर्म इन बिटवीन इज अ लिटिल बिट मेसेनकाइम. जब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे देन इट विल फॉर्म द buccopharyngeal membrane. Together this endoderm, ectoderm and small part here, that is buccopharyngeal membrane. That will eventually rupture and will develop the mouth cavity, oral cavity. अब इसको नजर में रखते हुए ऊपर से आया फ्रंटोनेजल प्रोसेस और साइड से फिर आएगा एक मैक्सिलरी प्रोसेस, एक मैंडिबुलर प्रोसेस. मैंडिबुलर आर्च हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च होती है और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है डॉर्सल पार्ट वो एक मैक्सिलरी प्रोसेस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फ्रिंजियल. अब यहाँ पे आप देखें तो ऊपर से ये फ्रंटोनेजल आएगी प्रोमिनेंस दैट विल डिसेंड डाउनवर्ड. साइड से from the sides, this is the mandibular arch, first pharyngeal arch, and from the dorsal of that a small maxillary process is coming out. So this two maxillary processes, two mandibular processes, and with single of the frontonasal, single central frontonasal prominence.
राइट, ये टेक पार्ट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द फेस। देखिए ये मैक्सिलरी प्रोसेस कहता है डेवलप फ्रॉम द क्रेनियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च, also cranial part of the first pharyngeal arch, और paired mandibular prominence है, ये हम पहले जान चुके हैं कि ये है फर्स्ट pharyngeal arch जिसकी नर्व फिर मैंडिबुलर नर्व है और मैक्सिलरी प्रोसेस की नर्व फिर मैक्सिलरी नर्व होगी और ऊपर से आ रहा है फ्रंटल नेजल। अब जब हमें ये आइडिया हो गया, अब हम आगे चलते हैं कि पहले तो ये बात समझिए कि ये इंड्यूस कैसे होता है डेवलप होने की, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है। क्योंकि मैंने इसलिए पहले जिक्र किया था कि एक ब्रेन आप ऊपर डेवलप हो रहा है जो कि एनलार्ज कर रहा है, उसमें जो फोर ब्रेन का पार्ट है जैसे प्रोजेंसेफेलॉन, फिर उसके बाद रोम्बेनसेफेलॉन और ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं फेस की डेवलपमेंट। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस यहाँ से आता है फेशियल डेवलपमेंट के लिए। उसमें फिर है कि paired maxillary and mandibular prominences are derived from the first pharyngeal arch, and the prominences are produced mainly by the expansion of the neural crest population। ये आप याद, ये ज़हन में रख रहे हैं, ये क्या है, न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल क्रेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि इनका जो मीजेनकाइम पार्ट है, जो बोन्स बननी है यहाँ पे, मोस्टली जो मैक्सिलरी प्रोसेस या फ्रंटल नेजल में आपकी नेजल बोन्स बनती हैं, आपकी एथमाइड बोन बननी है, डिफरेंट बोन्स बननी है, वो उनकी क्या है सोर्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये क्वेश्चन भी है कि ये न्यूरोक्रेनियम और विसरोक्रेनियम, यानी विसरोक्रेनियम इज द फ्रंट ऑफ द फेस, जिसमें आपका ब्रेन के अलावा जो पार्ट है, यानी मैक्सिला है, फिर नीचे फिर उसके बाद मैंडिबल है, माउथ कैविटी है, ये सब, ठीक है ना। और ये है कि ये न्यूरोकेसेल कहाँ से आ रहे हैं, मेसेनकेफेलिक एंड रोस्ट्रल रोम्बेनसेफेलॉन। मेसेनकेफेलिक पार्ट यानी मिड ब्रेन का जो पार्ट बनेगा, ये जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे मेसेनकेफेलिक पार्ट को मिड ब्रेन कहते हैं, रोम्बेनसेफेलिक यानी कि जिसमें फिर इसको डिवाइड करते हैं पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो फिर रोम्बेनसेफेलॉन न्यूरल फोल्डिंग फोर्थ वीक में जाके हुआ है। अब हमें वीक का भी पता लग गया कि फोर्थ वीक में। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो फिर हमें ये पता चलता है that facial development start in the fourth week. It is the cells taking part in this formation are the neural derived from neural crest population. Neural, and these neural crest cells, they are coming from mesencephalic and rostral, यानी cranial भी कहते हैं, embryologically rostral rhombencephalic neural फोल्ड्स, वहां से ये आ रहे हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फेस। फिर ये कि इसमें इंडक्टिव इन्फ्लुएंस जो है वो प्रोजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन से है। फिर इसमें हमने देखा कि दो मैक्सिलरी प्रोसेस हैं, दो मैंडिबुलर प्रोसेस और एक फ्रंटल नेजल है। समझ में आ गई बात। अब यह कि 5 फेशियल प्राइमोडिया जो हमें आप तक समझ आई, कहाँ होंगे, अराउंड द स्टोमोडियम, आपकी माउथ जो ओपनिंग है उसके अराउंड 5, ठीक है जी। दो, एक सिंगल फ्रंटो नेजल, फिर ये दो पेयर्ड आगे मैक्सिलरी, फिर ये दो पेयर्ड आगे मैंडिबुलर, ठीक हो गया, ये मैंडिबुलर। अब इसमें फ्रंटल नेजल प्रोमिनेंस जो कि नीचे तक जा रही है, यहीं से आइडिया भी होता है कि नोज का पार्ट बनाएगी ये। तो ये फ्रंटल सिंगुलर, दो मैक्सिलरी, दो मैंडिबुलर, और दरमियान में ये देखिए स्टोमोडियम, आपकी माउथ कैविटी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आइडिया है। और नीचे से ये देखें, यहाँ पे पीछे फ्रेंजियल आर्चिस का एरिया पड़ा हुआ है, तो वहां पे हमने देखा कि टंग की डेवलपमेंट शुरू होती है, दो लैटरल स्वेलिंग और फिर कुपुला, ये मिलके ये बनाती हैं टंग, और टंग का फिर आगे सारी आती है वो, बाकी उसका आप पहले पढ़ चुके हैं। सो द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर, again I repeat these two slides, you should listen these two slides very carefully, we can summarize it, बड़ी अच्छी तरह हम इसको समराइज कर सकते हैं।
एक चीज जो अंडरस्टैंड करने की है कि 4th वीक में स्टार्ट हुआ, फिर इसके जो सेल्स है to form the facial bones and facial, they are coming from neural crests. और वो न्यूरल क्रेस्ट सेल कहाँ से आ रहे हैं? वो मिड मेसेंसेफेलिक एंड रोस्ट्रल रोम्बेंसेफेलिक पार्ट से, यानी मिड ब्रेन और पॉन्स एंड मेडुला से। अब देखिए इनकी नर्व सप्लाईज भी उसी तरह से आती है फेस की। फिर ये इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? प्रोजेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलिक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है, ये इसकी इंडक्टिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं फेशियल। फिर हमने देखा, फिर हमने जाना, ये चीजें जब हमें क्लियर हो गई तो फिर हमने देखा कि फर्दर प्रोसेस में हमने देखा कि ये एक सिंगल प्रोसेस है, फ्रंटोनेजल, 2 पेयर्ड मैक्सिलरी हैं, 2 पेयर्ड मैंडिबुलर, जो कि सराउंड कर रहे हैं किसको? स्टोमोडियम, आपकी माउथ कैविटी। चलिए आगे चलते। तो ये यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रंटोनेजल, ये मैक्सिलरी और ये मैंडिबुलर। मैंडिबुलर तो फिर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या बनेगी? मैंडिबुलर बोन बनेगी, और इसका जो बहुत पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां से मिडिल ईयर की 2 बोन बनती है, इनकस और मेलिस यहाँ से बनती है, फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से। मिडिल ईयर की 2 बोन्स इनकस और मेलिस भी बनती है और मैंडिबल बनती है। इसकी नर्व कौन सी है? मैंडिबुलर नर्व। तो ये मैक्सिलरी प्रोसेस साइड से नजर आ रही है। अभी ये देखिए आईज वाले पोर्शन जो है वो लैटरल है, और नेजल पिट जो डेवलप हो रही है वो यहाँ पे लैटरली है, सेंटर में फ्रंटोनेजल प्रोसेस आ रहा है। अब ये कैसे शेप इख्तियार करता है, फर्दर डेवलपमेंट में क्या होता है? नेजल प्लेकोड से ये नेजल प्लेकोड बना, और ये लेंस प्लेकोड, यानी ये आई को डेवलप करेगा, ये नेजल कैविटी। फर्दर क्या हुआ कि फर्दर ये हो गया प्लेकोड सिंक किया 5th वीक, 4th वीक में ये काम शुरू हुआ, 6th वीक में ये इसकी जो प्लेकोड का था उसमें पिट बन गई, और वो कम्युनिकेट कहाँ कर रही है? स्टोमोडियम के साथ, ये माउथ कैविटी। इसमें अगर आप देखें तो ये एक ब्राउन से और एक ये व्हाइट से 2 पार्ट बन गए। ये पार्ट हो गया लैटरल और ये पार्ट हो गया मीडियल। इट मींस कि ये जो नेजल प्लेकोड है इसमें फिर 2 प्रोसेसेस बन गए, एक लैटरल और एक मीडियल, लैटरल नेजल प्रोसेस और मीडियल नेजल प्रोसेस। और ये देखिए मैक्सिलरी प्रोसेस डेवलप हो रहा है, जो कि उसके क्रेनियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च के साथ, मैंडिबुलर के साथ। ठीक है जी। अब यानी फर्दर में क्या हमें पता चला कि ये नेजल प्लेकोड हुआ डेवलप, उसमें बनी नेजल पिट। नेजल पिट को सराउंड किया एक लैटरल नेजल प्रोसेस ने और एक मीडियल नेजल प्रोसेस में, और इसी में देखें तो सेंटर में ये फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस जो है, प्रोसेस जो है वो सेंटर में ही है अभी। ठीक है क्या? अब 7वें से 10वें हफ्ते में 7th to 10th वीक में मीडियल नेजल प्रोमिसेस वो मर्ज करेंगी विद द मैक्सिलरी एंड लैटरल नेजल प्रोमिसेस, उसके साथ मिल जाएंगी। मर्जिंग जो भी रिक्वायर्स डिसइंटीग्रेशन एंड कॉन्टैक्टिंग द सरफेस एपिथेलिया। लाजिमी बात है कि एम्ब्रियोलॉजी में कुछ चीजें गायब होती हैं और कुछ चीजें आपस में मिल जाती हैं, नई चीजें बनती हैं, तो उससे ये सारी फाइनल शेप बनती है। जो इंटरमिंगलिंग है अंडर दिस इंटरमिंगलिंग ऑफ अंडरलाइंग मेसेनकाइमल सेल, merging of medial nasal and maxillary prominence result in continuity of the upper jaw और लिप के साथ, और फिर नेजल टिप फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे है कि ये एक इंटर मैक्सिलरी, 2 मैक्सिला जी प्रोसेस थे, उनके दरमियान एक इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट बन जाता है, और वो सेगमेंट जो है फिर वो इंटर मैक्सिलरी सेंटर जो सेगमेंट है, इट इज हैविंग अ सेपरेट इंपॉर्टेंस in formation of the centrum philtrum of the upper lip, premaxillary part of maxilla and associated gums and primary palate। ये हम फर्दर आगे हमें समझ आएगी। अब ये चीज डायग्राम से समझ आएगी। डायग्राम से किस तरह समझ आएगी कि ये देखिए, ये हमने कहा नेजल
प्लेकॉर्ड बना, फिर नेजल पिट बनी, तो इसमें ये हो गया मीडियल नेजल प्रोमिनेंस और ये होगी लैटरल नेजल प्रोमिनेंस और ये मैक्सिलरी प्रोसेस। अब ये देखें, ये ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो ये मीडियल नेजल प्रोमिनेंस नजदीक आ रही हैं और ये फिर मीडियल नेजल प्रोमिनेंस मर्ज कर रही हैं किसके साथ, मैक्सिलरी के साथ। इधर देखें आप, इधर एक वो थोड़ा सा क्या, ये आई डेवलप हो रही है और ये देखें ये एक कैप सा भी बन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे समझ आ गई तो इसका मतलब है यहाँ से ये आपको नेजोलैक्रिमल डक्ट की भी समझ आ जाएगी, वो बात की बात है। So here what we understand that this is frontonasal prominence. So frontonasal prominence के साथ क्या हुआ, दोनों medial nasal prominences fuse की and they also fuse with the maxillary process. अब ये जो दो मैक्सिला के दरमियान वाला पार्ट है, ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट हो गया, जो कि फ्रंटोनेजल प्रोसेस और मीडियल नेजल प्रोमिनेंस के फ्यूज होने से बना इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। अब ये सेगमेंट देखें तो फिर आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये आपका सेंटर ऑफ द अपर लिप बनाएगा और उसके आपके अपर लिप के पीछे 4 इंसाइजर्स पड़े हुए हैं, तो वो भी फिर इसका मतलब इसी से बनेंगे। और इंसाइजर्स के पीछे आपका वो इंसिसिव फोसा होता है और वो ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट होता है, यानी कि प्राइमरी पैलेट, वो भी फिर इसी से बनेगा। ठीक है ना जी, यहां तक समझ आ गया कि ये इस डायग्राम से हमें समझ आता है कि किस तरह नेजल प्रोमिनेंसेस फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आप लैटरल के बारे में सोच रहे होंगे कि उसका क्या बना, तो आपके जो ये लैटरल नेजल प्रोमिनेंसेस हैं, ठीक है ना, वो किससे बन रही हैं, ये आपके अपनी नेजल कैविटी है ना, उसके लैटरल नेजल एली जो है, जो क्या कहते हैं नाक फुलाना जिसको हम कहते हैं, तो वो बन रही है लैटरल नेजल प्रोमिनेंस से। सो लैटरल नेजल प्रोमिनेंस इज फॉर्मिंग द लैटरल साइड ऑफ द एला। मीडियली क्या है, मीडियली फिल्थ्रम भी और मीडियली ये सारा कुछ मीडियल नेजल प्रोमिनेंस की फ्यूजन है किसके साथ, फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस के साथ। और यहाँ पे ये देखें, ये मैक्सिला के साथ फ्यूज कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि ये दो मैक्सिला के दरमियान, ये भी मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, ये भी दो पेड़ है जो कि ग्रो ही सेंटर में मिली, इनके दरमियान में ये वाला सेगमेंट जो है, दिस इज इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट बिटवीन द टू मैक्सिला। तो यहाँ पे देखिए आई मूव कर रही है, फिर मीडियली मूव कर रही है। अब अगली डायग्राम में आप देखें तो ये फाइनल शेप, इसमें उसने दोनों चीजें दिखाई हुई कि फाइनली ये बनता है। तो इसमें ये मीडियल नेजल प्रोसेस, लैटरल नेजल प्रोसेस, फिर ये ग्रो किया, लैटरल नेजल प्रोसेस ऊपर चला गया और ये मीडियल नेजल प्रोसेस ये सेंटर में यहाँ पे करीब आ गया। ये फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस के साथ इसने बनाया इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट और ये फिर फिल्थ्रम और उसको ये देगा और ये वाला भी ये फिल्थ्रम है। सो इट मींस दैट दिस एरिया इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। बाकी पार्ट अगर आप देखें तो वो फिर मैक्सिलरी प्रोसेस से आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिला बन जाएगी और ज़ाइगोमेटिक बोन बन जाएगी। ये जो लैटरल एला है ये बन रहा है लैटरल नेजल प्रोसेस से। यहाँ पे इसने डायग्रामेटिकली शो किया है कि ये देखें कि ये मैक्सिलरी प्रोसेस था, ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस है। ये मैक्सिलरी प्रोसेस ओवरग्रोज द फ्रंटोनेजल प्रोसेस, तो वो कंप्लीट कर देता है इसको। अब वो देखे ना, वो करेगा ओवरग्रो करेगा तो मर्ज करेगा ना, तो ये इसमें क्या हुआ कि ये फिर फाइनली इसमें भी उसने उसी तरह दिखाया कि फाइनली ये पार्ट जो है अपर लिप का, अपर लिप जो बनेगा वो किससे बनेगा, फिर टू मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस, ये दो जो है मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस, टू मैक्सिलरी प्रोसेसेस, ये साइड पे मैक्सिलरी प्रोसेसेस आ जाएंगे। The lateral nasal prominences do not participate in formation of the upper lip. So upper lip कैसे बना, दो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस से सेंटर में उसका फिल्थ्रम और साइडों पे क्या है, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस। ठीक हो गया। इसमें ये लैटरल नेजल प्रोमिनेंस जो है
ये कोई टेक पार्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया, ये याद रह जाएगी ना बात, क्योंकि ये नजर आ रहा है हमें, ये चीज याद रह जाएगी उम्मे हानी। जाऊंगा फिर लोअर लिप, वो तो आप देखें ना कि फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से ही बनेगा, यानी मैंडिबुलर प्रोसेस से ये बनेगा, क्रॉस मिड लाइन या फ्यूज के अंदर लोअर लिप बनेगा। तो हमें लिप की फॉर्मेशन का भी पता चल गया। अब हमने जो सवाल पैदा होता है, ये टेबल आपने याद रखना है, फ्रंटोनेजल, मैक्सिलरी, मीडियल नेजल, लैटरल नेजल, मैंडिबुलर, ठीक है ना। तो ये टेबल आपने देखना, याद रखना कि ये कैसे बनता है। ये टेबल आपकी किताब में भी है ना, वही अब मेरे ख्याल में उसमें है, ये लैंगमैन में, तो वो देख लीजिएगा। तो वो ये आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या चीजें बनती हैं। अब हमें यह है कि नेजल कैविटी कैसे बनती है। आखिर नाक के अंदर कैविटी भी है ना, जो कि पीछे कम्युनिकेट कर रही है किसके साथ, आपकी वो थ्रोट के साथ या गले के साथ या फेरेंक्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है, नेजोफेरेंक्स के साथ नेजल कैविटी। तो वो कैसे करती है, ठीक है ना। ये वही डायग्राम मैंने रिपीट की थी, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूंगा फिर दोबारा। अब यहाँ पे ये सारी की सारी एक्सप्लेन कर रही है कि नेजल कैविटी कैसे बनती है। तो पहले तो ये नेजल प्लेकोड बना था ना, उससे फिर मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस बनी। तो ये जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस है, यहाँ से ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे जा रहा है, और जो कि इसके फोर ब्रेन से जो नेजल कैविटी बन रही है, नेजल पिट जो बनी थी, तो ये ऊपर फोर ब्रेन है ना, ये डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे ये इसके साथ अटैच है। लेकिन जब ये कैविटी रप्चर हो गई, तो जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस का इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट था, उसने प्राइमरी पैलेट बनाया। तो यहाँ पे देखिए ये नेजल पिट जो है अब कम्युनिकेट कर रही है किसके साथ, ओरल कैविटी के साथ, ठीक है ना। यानी ये नेजल कैविटी इनिशियली कम्युनिकेटिंग विद द ओरल कैविटी, बट विद फर्दर डेवलपमेंट ये प्राइमरी पैलेट बना, फिर सेकेंडरी पैलेट जब बना, तो फिर नेजल कैविटी सेपरेट हो गई इस माउथ कैविटी से कंप्लीटली, और पोस्टीरियरली द नेजल कैविटी इज ओपनिंग इनटू द फेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स। और यहाँ पे ये देखें जी कि इसकी एपिथेलियम थी नेजल पिट की, ये एक्टोडर्मल ये लाइनिंग, इट इज नाउ फर्दर डिफरेंशिएटिंग इनटू द सेल्स फॉर द ऑल्फैक्शन। और यहाँ पे एक फोर ब्रेन में आप जब ग्रॉस में देखेंगे तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड से जो नर्व फाइबर आगे जाते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब बनाते हैं, तो फिर वो ऑल्फैक्शन के लिए, तो फर्स्ट नर्व जो है ऑल्फैक्टरी नर्व, वो इस तरह डेवलप होती है, क्योंकि उसका साथ उसका ताल्लुक किससे है, ऑल्फैक्शन से, मींस सूंघने से। तो एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड होती है कि ये एक्टोडर्मल है इन ओरिजिन, ये एक्टोडर्मल है। फिर ये ऊपर से जो आया फोर ब्रेन का पार्ट, वहां पे ऑल्फैक्शन, फर्दर इसका कनेक्शन जो है वो नर्व जब पढ़ेंगे तब आएगा। दूसरी बात हमें ये समझ आई कि ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट जो होता है, जिसमें के मीडियल नेजल प्रोमिनेंस भी होती है, तो उससे प्राइमरी पैलेट बना, सेकेंडरी पैलेट नहीं, वो उसकी डिफरेंट है, वो फिर मैक्सिला से ही बन सकता है। तीसरी चीज हमें समझ आई कि शुरू शुरू में नेजल पिट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय ओरोनेजल मेम्ब्रेन, बट देन इट डिसइंटीग्रेट। ये अब वीक के लिहाज से दिखाया, फिफ्थ वीक में ओरोनेजल मेम्ब्रेन है, सिक्स वीक में ये एनलार्ज हुई नेजल कैविटी, डिफरेंशिएट हुई, सेवंथ वीक में ये रप्चर हो गई, और ऊपर जो है ना ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बन गई, जो कि नर्व के साथ कनेक्ट हो गई ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ, ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ। नीचे जो पार्ट बचा था जब ये रप्चर हुई, पार्ट ऑफ द मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, दैट इज इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, वहां पे प्राइमरी पैलेट बन गया, और प्राइमरी पैलेट के जो पोस्टीरियरली फिर बना सेकेंडरी पैलेट, दैट सेपरेट्स कंप्लीटली the nasal cavity from the oral cavity. The only communication is posteriorly, where the nasal cavity is opening into the nasopharynx. ये पार्ट कंप्लीट हुआ 12th वीक में जाके। रप्चर कब हुआ, 7th वीक में। स्टार्ट कब हुआ, 5th वीक में। 4th 5th वीक में स्टार्ट हुआ ना, और 7th वीक में जाके ये मेम्ब्रेन
ओरोनेजल मेम्ब्रेन रप्चर हुई। ये ऐसे ही एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है ना। अब रह गया नेजल सेप्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ फिर हमने साइनसेस डिस्कस करने हैं, पैरानेजल साइनसेस कैसे बनते हैं, फिर हमने उनके वो डिस्कस करके फिर एंड में जाके हम पैलेट को भी डिस्कस करेंगे। ये मुझे लगता है कि एडिशनल लेक्चर बीच में मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो वो फिर हम मिलके ऐड कर लेंगे ताकि ये कवर हो जाए फेस, इसी वीक में फेस कवर हो जाए। Record